Hello and welcome everyone again to the Boundary Banter. This is episode number 15 and this is the episode 3 of our special series Beyond the Boundary, where we discuss cricket beyond the boundaries. Right? And आज अभी जैसे क्रिकेट का सीजन अभी ऑन हुआ है, we have a very packed international schedule also ahead. But बीच में one of India's pioneer domestic tournament चल रहा है, which is दुलीप ट्रॉफी. राइट वहां पे इस टूर्नामेंट में तो हमें शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल एंड ऑल ऑफ द इंडियन होपफुल्स आल्सो इंडियन क्रिकेट एक्चुअली द पार्ट ऑफ द टीम जो प्लेयर्स हैं वो दिख रहे हैं. कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, इनफैक्ट आकाशदीप एंड यश दयाल ने तो ये खेल के अपनी टीम में जगह भी बना ली है एज वी स्पीक. राइट तो this has a very rich cultural heritage when you talk about cricket in India. And before we touch upon exactly what Duleep Trophy is, let me take you back to the time when it was getting established and who is behind, like when we say कि यार Duleep Trophy चालू हो रही है, and Duleep, Ranji, all of these sound as names, right? Names of Indians, right? So I'll start with who Duleep Sinji really was, who he is, who he represented throughout his career, and Duleep Trophy का इजाद कैसा हुआ basically, right? So just to begin, Duleep Trophy is named after Kumar Shri Duleep Singh ji, who was born in Gujarat and surprisingly played for England, right? उन्होंने अपना career शुरू किया. He went to the UK, United Kingdom, to complete his formal education, and that is when his love affair with cricket started, right? He started with there were many clubs that he came with, but at the same time he gained his success most with Sussex, right? Just to name one of those clubs, right? And interestingly, one of the most interesting fact about Duleep Singh ji is that he's the nephew of Ranjit Singh ji, on whom the Ranji Trophy is also named, right? So in one family we already have two legends, right? He in fact went on to represent England also, although for 2 years he had to take an early retirement, right, because of some illness and conditions that he had. But at the same time, there are not a few, there are many, in fact, interesting facts about Duleep Singh ji, right? One of which being that he almost missed out on playing, he has missed out on playing two iconic series. One of them being the 1929 tour, when England was playing South Africa. South African team actually went on to say, we don't want Duleep Singh ji in the team, and he had to withdraw for that reason, only because South Africa did not want to set a precedence that we can lose from a man of color also, right? That is one, right? And as you would have heard in our previous episode when we talked about Bodyline, right? He also missed out on the chance of being part of the Bodyline series. Despite that, उन्होंने 12 टेस्ट मैच खेले हैं इंग्लैंड के लिए. He scored at an average of 58, if I'm not wrong, and he had a very illustrious career. In fact, he was the Wisden Cricketer of the Year in 1930, right? So which is no mean feat, right? And again, I mean, his life has been full of ups and downs, as I said that in fact, when once he retired in 1932, just a year prior was his most prolific year. He scored 12 centuries for Sussex in 1931, and 4 of them being successive centuries, right, in back-to-back innings, right? तो ये बहुत लेसर नोन फैक्ट्स हैं. हम आज भी दुलीप ट्रॉफी सेलिब्रेट करते हैं कि यार हमारे यंगस्टर्स निकल के आ रहे हैं, बहुत प्लेयर निकल के आ रहे हैं, बट वी नेवर नो ही रिप्रेजेंटेड इंग्लैंड, नॉट इंडिया, right? And same goes for Ranjit Singh ji, right? And the biggest part about this family is that they have produced absolute legends, right? And dwelling further into how the tournament started, how what exact conditions developed कि यार ये 1960s में, I think if I'm not wrong, this started, right? So Siddharth, please throw some light as to क्या format रहा, कैसी teams थी, because I understand this is zonal cricket tournament that India has been holding, right? So please throw some light. So बाबा, बहुत बिल्कुल आपने सही कहा कि it has been a zonal tournament. 1961-62 में स्टार्ट हुआ. So शुरू हुआ ये 5 zones से, which were North Zone, West Zone, Central Zone, East Zone and South Zone. So I think उसमें बहुत अच्छा एक ये था कि दुलीप ट्रॉफी में these teams competed. West Zone won that. एंड उसके बाद हमने देखा कि 90s में इसका फॉर्मेट बीच में चेंज हुआ, बिकॉज उससे पहले तक ये बिल्कुल एक नॉकआउट फॉर्मेट.
एंड इट वो नॉकआउट गेम्स की तरह खेला जा रहा था. 93-94 से इसको एक लीग फॉर्मेट बना दिया था. एंड वहां से एक सीजन के लिए ऐसा भी हुआ था 2002-03 में, जहाँ पे रणजी की टीम्स को भी लाया गया था, बट वो एक सीजन के बाद ही डिसबैंड हो गया. तो आई थिंक वो काफी चेंजेस मॉडिफिकेशंस करते रहे अर्दुलीप ट्रॉफी में. एंड बहुत सारी चीजें हुई एंड बहुत प्लेयर्स हमें देखने को मिले. एंड वहीं पे टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स, आई थिंक अभिषेक, आप हमें कुछ बताइए, हमें कौन कौन से दिग्गज खिलाड़ी या यंग प्रॉमिसिंग खिलाड़ी देखने को मिले इस टूर्नामेंट से. नहीं यार सिद्धार्थ, एब्सोल्युटली थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन. तो यार देखिए, दिलीप ट्रॉफी और इंडियन क्रिकेट टीम में ऑब्वियसली बहुत सारी सिमिलैरिटीज है. सिमिलैरिटीज आई थिंक सिमिलर प्लेयर्स है जो दिलीप ट्रॉफी से निकले और स्टॉलवर्ड्स बने ऑफ इंडियन क्रिकेट. सो लेट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टार्ट विद सचिन तेंदुलकर एंड सौरव गांगुली. आई थिंक पहला मैच वेस्ट जोन से खेल रहे थे सचिन तेंदुलकर एंड ईस्ट जोन से खेल रहे थे सौरव गांगुली. So they faced off against each other. Sachin even scored 100 in that match. Ganguly ने भी अच्छे रन बनाए थे. तो some players like Sachin and Saurabh, they have played. Then again उसके बाद में आप थोड़ा सा और आगे जाइए, आप 2002-2003 में आइए, तो आप देखिए इरफान पठान जैसे प्लेयर्स का एक बहुत अच्छा सीजन निकला दुलीप ट्रॉफी में, एंड देन ही वाज पिक्ड अप फॉर इंडिया डेब्यू. आकाश चोपड़ा का भी ही इज अमंगस्ट टॉप 5 रन गेटर्स इन दुलीप ट्रॉफी हिस्टोरिकली. तो आप देखेंगे कि उस टाइम पे अच्छा उन्होंने एक सीजन करा, एंड देन ही गॉट पिक्ड अप फॉर द इंडियन टीम. एंड इट्स वेरी कॉन्ट्रास्टिंग कि एक प्लेयर लाइक आकाश चोपड़ा हु डिडंट रियली डू वेल इन इंटरनेशनल क्रिकेट, बट दुलीप ट्रॉफी में बड़ा नाम है वो. तो उनका रहा. देन अगेन वसीम जाफर, आप देखिए वसीम जाफर ऑल टाइम हाईएस्ट रन स्कोरर है. ही स्कोर्ड ऑलमोस्ट 2500 रन. एंड इंडिया के लिए भी ओपनिंग की है उन्होंने, बहुत अच्छे नॉक्स खेले, इंग्लैंड में खेले हैं, डोमेस्टिकली इंडिया के लिए बहुत अच्छे ओपनर रहे वसीम जाफर. अब विक्रम राठौर को देखिए जो बैटिंग कोच थे इंडिया के फॉर दी रिसेंटली कंक्लूडेड वर्ल्ड कप. तो विक्रम राठौर ही इज अमंगस्ट द टॉप 5 रन गेटर्स. मोहिंद्र अमरनाथ जैसे प्लेयर्स, उसने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस खेले हैं. नरेंद्र हिरवानी, उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं. तो कई सारे ऐसे नाम हैं आपने नहीं सुने होंगे जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आते हैं, दे क्रिएट एन इम्पैक्ट एंड टीम में आते हैं. बट आजकल एक ट्रेंड हो गया, आईपीएल से लोग ज्यादा आने लगे, इफ यू हैव सीन दैट. बट एक टाइम था जब दिलीप ट्रॉफी में जाके आपको परफॉर्म करना होता था. नॉट नॉट जस्ट दिलीप ट्रॉफी, इवन फॉर रणजी ट्रॉफी फॉर दैट मैटर, एंड आप अच्छा परफॉर्म करके आ सकते हो. तो आई थिंक दिलीप ट्रॉफी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है इंडियन क्रिकेट में. एंड देन अगेन आई थिंक ओवर टू बाबा. बाबा हैज टू also he should talk about some things or some teams which were not expected in Duleep Trophy. International teams भी खेली है, उनके भी अच्छे एग्जांपल्स हैं. तो बाबा बताइए. तो बिल्कुल. एंड मतलब आई थिंक फ्यू पीपल नो दिस. आई थिंक एवरीवेयर इट्स इन द न्यूज दैट केपी ने पोस्ट किया है, केविन पीटरसन ने, दैट आई फॉन्डली रिमेंबर माय टाइम इन इंडिया when 2003-2004 season में England A came to play the Duleep Trophy, but the trend started way back in 62-63, 1962 and 1963 में. One player from the West Indies team was part of each zone, right? And interestingly, Roy Gilchrist, who is like an absolute legend in West Indies cricket, also played in India in the Duleep Trophy. That is one of the one very rare and interesting facts. And as a fan, to understand the players who have come and played in India, right, domestically, right, Matt Pryor KP आए थे 2004 में. Then 2005 में when Zimbabwe team was called upon, Hamilton Masakadza and Brendan Taylor were part of that squad, right? Then you see when Sri Lanka was called on in the next year, players like Rangana Herath, and their captain Thilan Samaraveera, right? Thilan Samaraveera was their captain, and he has like we all know, he's a household name in India also. He has represented Sri Lanka also, right? And the most interesting season, which was also the last season when the foreign teams were allowed as guest teams, which was 2008. 2008 में players like Monty Panesar, Adil Rashid, Liam Plunkett, like all of these players have rubbed shoulders with our domestic players, right? So this was a very interesting phase, these 5 to 6 years, because this not only gave
and exposure to foreign teams coming to India and representing their A sides or B sides here and getting a feel of the subcontinent, but also for our young stars, right? उस टाइम पे अगर आप देखो 2005-2006 की बात देखो तो a foreigner coming and playing with Indians and in India was a foreign concept again. राइट आईपीएल तब तक आया नहीं था, आईसीएल थोड़ा थोड़ा टच अपॉन कर रहा था, बट व्हेन केपी वुड हैव कम, व्हेन मॉन्टी पेनिसा वुड हैव कम, यू गेट अ डिफरेंट चैलेंज एंड दोस वर इंटरेस्टिंग टाइम्स एंड ओवरऑल आई थिंक देखा जाए तो दिलीप ट्रॉफी, जैसे अभिषेक भी बता रहे थे, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, राइट, आईपीएल से पहले दीज वर योर स्टेजेस, राइट, दीज वर योर दिस इज वेर यू शोकेस्ड योर टैलेंट. एंड देखिए आकाश चोपड़ा जितना भी आज कमेंट्री में बोलते हैं ना, उस बंदे को इसलिए लाइक वो हिचकिचाते नहीं है बिकॉज उन्होंने इंडिया के इस टूर्नामेंट में बहुत रन जड़े हैं, राइट. एंड ऐसे बहुत एग्जांपल्स यार, मतलब अगर आप देखो तो जब पृथ्वी शॉ का नाम नया नया आया था, राइट, उनको बोला गया यार रणजी ट्रॉफी की डेब्यू में 100 मार दी, दिलीप ट्रॉफी की उसमें डेब्यू में 100 मार दिया, टेस्ट मैच में 100 मार दिया, विच मीन्स दैट रणजी ट्रॉफी, टेस्ट मैच एंड दिलीप ट्रॉफी आर ऑलवेज named in the same breath, right? That's the magnanimity of this tournament, right? तो very very interesting tournament का जो phase भी बीच में नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम भी ले आए, and we tried to do many variations, India A, B, C, D, India Red, etc. तो Duleep Trophy has always been very interesting, right? And yeah. एंड यार सबसे सरप्राइजिंग बात ये है, मैं देख रहा था कुछ स्टैट्स, तो आई थिंक वेस्ट जोन में सबसे ज्यादा बार दुलीप ट्रॉफी जीती है. तो वेस्ट जोन में ऑब्वियसली आप देखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, इन एरियाज के प्लेयर्स ज्यादा है. तो पीपल लाइक सचिन और इवन यू कैन टेक गावस्कर, और अपने टाइम पे और प्लेयर्स और होंगे जो खेले होंगे. देन नॉर्थ जोन जो है, जिसमें आप मान लीजिए दिल्ली के प्लेयर्स हो गए या पंजाब के प्लेयर्स हो गए, तो ये प्लेयर्स ने काफी खेला है. तो आई थिंक जो उसका फॉर्मेट भी रहा, इट्स बीन चेंजिंग. पहले आई थिंक जोन्स होते थे, देन इंडिया ए, इंडिया बी, आई थिंक वो तो अभी आया. पहले आई थिंक इंडिया रेड, इंडिया ब्लू, एक ये वाला फॉर्मेट भी चला था. तो आई थिंक डिफरेंट फॉर्मेट्स भी प्ले चुके हैं. नॉस्टैल्जिक है वो तो, इंडिया रेड और ग्रीन वाला टाइम. हाँ एग्जैक्टली. वो जो ओडीआई टूर्नामेंट था वो भी इसी में दुलीप ट्रॉफी का ही पार्ट था क्या, एक जो हम नियो क्रिकेट पे देखा करते थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहने वाला. यस यस, वो नियो क्रिकेट की यादें ताजा करवा दी यार आपने. अब वो जाके देखना पड़ेगा नियो क्रिकेट या नियो स्पोर्ट्स पे. वही नहीं, मतलब क्रेजी टाइम्स यार, मतलब आनी बातें याद आ गई सीरियसली. एंड मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, वसीम जाफर जैसे हो गए, विक्रम राठौर हो गए, तो यार ये लोग लाइक मे बी इंटरनेशनल क्रिकेट में दे आर नॉट as widely regarded as other players, but domestically and Sarbi contribution to India cricket is not less than any other legend of the game. Vikram Rathore is your batting coach, was your batting coach. Then Wasim Jafar has coached, and then again Wasim Jafar domestically भी अच्छा करते आ रहे हैं, and he's like a good mentor figure for several young players. So yeah, I think it's a pretty interesting tournament, pretty good platform for anyone who is willing to perform, और inclusivity का एक sort of दर्शाता है कि यार कोई भी जोन को छोड़ा नहीं, किसी स्टेट को छोड़ा नहीं, सबको मौका है, करेगा आके खेल सकता है. अभी आप लोग आकाशदीप है, अभी आई थिंक आने वाले एक टेस्ट में रिंकू सिंह भी खेलने वाले हैं, बातें चल रही है रिंकू सिंह विल प्ले. बिकॉज इंडियन टेस्ट टीम विल बी लीविंग, तो अब बट इसमें ना एक चीज मुझे याद आती है 2001 की, राइट. 2001 का एक बहुत अच्छा दुलीप ट्रॉफी रिलेटेड एनेक्डोट है, which I think many people know, but now they can relate with the Duleep Trophy going on, right? There was a certain player, right, and I will not tell the name right now. That player missed out on an opportunity of playing in Duleep Trophy just because he couldn't reach the stadium in time, right? And probably in 2001 we could have got a legend who later got a chance to play for India 2004 on the back of his great performances in not only in the Duleep Trophy but multiple other local tournaments for India A also, and that name is Mahendra Singh Dhoni, right? And when you're talking about MS Dhoni, अभी कुछ दिन पहले ही, अभी परसों तरसों की बात है, that Dhruv Jurel has actually broken Dhoni's record of most number of catches in a innings of Duleep Trophy, right? तो अभी भी 20 साल बाद भी 2004 का वो मैच था जब धोनी ने 7 कैचें ली थी, एंड अभी दुलीप ट्रॉफी के आई थिंक इंडिया ए के लिए खेलते हुए उन्होंने 7 कैचें ली हैं, राइट, ध्रुव जुरेल ने,
राइट। तो मतलब दुलीप ट्रॉफी में अभी भी धोनी का नाम चल रहा है, वो तो चलेगा ही इंडियन क्रिकेट में। बट हाँ, मतलब अब जैसे ध्रुव जुरैल की बात करी मैंने, ध्रुव जुरैल जैसे प्लेयर जो ही इज अ सेकंड चॉइस विकेट कीपर, बोथ आर चॉइसेस ऑफ विकेट कीपर्स आर करंटली प्लेइंग, राइट। एक इसमें बहुत एक टची टॉपिक है दुलीप ट्रॉफी से रिलेटेड विच आई वुड वांट टू डिस्कस विद यू गाइस, इज दैट why don't players like Rohit, Kohli, and other players who are, I understand they select themselves in squads and they don't need these tournaments to prove their worth. But what about match practice, right? कहीं ना कहीं वो debate आ जाता है कि यार when Nita calls or when Malia calls, you play for 2 months, but when India calls, you are not able, able to take 14 days out, right? And that's not, we are not asking you to play strenuous cricket, right? आपके सारे player खेल रहे हैं. Why is that we have made it a culture? And in fact, right now Rohit and Kohli don't have the third format to play, right? वो उनका T20 से sign off हो चुका है. Why not concentrate on Test and ODI cricket? I would like to take your opinion on that. Starting with, I think Siddharth is wanting to speak. तो Siddharth आप बोलिए. आई थिंक यार रोहित कोहली तो इसलिए भी नहीं खेल रहे बिकॉज सबसे पहले दे डोंट हैव टू प्रूव देमसेल्व्स एंड आई थिंक यही बात है कि सीनियर प्लेयर्स आई थिंक यंगस्टर्स को ऐसे फॉर्मेट्स में ज्यादा खेलने चाहिए, ऐसे प्लेयर्स जो फ्यूचर जेन में जाके अच्छा करें। एंड इस इन टूर्नामेंट्स का मेन मोटिव या मतलब ही यही होना चाहिए कि हमें आगे जाने के लिए प्लेयर्स मिले या फिर हमें अपनी आगे की टीम सेलेक्ट करने के लिए मिले। आप इतना ज्यादा फ्यूचर इन रोहित शर्मा, विराट, इन सब के साथ नहीं बट देख। एक सिद्धार्थ, एक कॉन्ट्रडिक्टिंग ओपिनियन तो मेरा यहाँ पे ये भी आएगा ना कि प्लेयर्स हु आर प्लेइंग टेस्ट मैचेस एंड यू हैव एन ऑफ टाइम विद अ बिजी टेस्ट शेड्यूल अहेड, राइट। मेरा पॉइंट आई एग्री विद यू दैट यंग प्लेयर्स शुड प्ले, बट टीम अगर 4 बन रही है, यू हैव 44 प्लेयर्स टू पिक, इज इट सो डिफिकल्ट टू चूज 4 सीनियर प्लेयर्स एंड 40 यंगस्टर्स? मैं कहता हूँ यंगस्टर्स को चांस दो। रणजी ट्रॉफी इज ऑल अबाउट गिविंग चांसेस टू यंगस्टर्स जो भी आना चाहते हैं। आप ये देखिए कि रणजी ट्रॉफी की टीम से निकल के प्लेयर्स दुलीप ट्रॉफी की टीम में सिलेक्ट होते हैं, तो व्हाई कांट? एंड यहाँ पे मैं रणजी ट्रॉफी को भी लाना चाहूंगा कि इफ एंड आई वुड वांट टू सी विराट कोहली एंड रोहित शर्मा एटलीस्ट प्लेइंग 1 मैच ऑफ रणजी ट्रॉफी पर सीजन। कुछ तो करिए ताकि हमें भी तो लगे यार कि इट्स नॉट अबाउट यंगस्टर्स, इट्स ऑल्सो अबाउट गेटिंग द मैच प्रैक्टिस यार। अब अगर विराट कोहली ने फिर मेहदी मिराज की बॉल पे एलबीडब्ल्यू होने का तो सरप्राइज रिएक्शन दिया ना, तो my only answer to that would be that you should have played Duleep Trophy for North Zone, right? Abhishek, what's your opinion on seniors skipping it as per convenience? And it has been in the past. मैं ये नहीं कह रहा कि रोहित कोहली पे अटैक है, जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन रहते थे वो भी इतना नहीं खेलते थे। डोमेस्टिक क्रिकेट, while you are an international cricketer, has been followed only by Sachin, right? सचिन खेला करते थे रणजी ट्रॉफी मुंबई के लिए भी, बट वो कल्चर एकदम डिप्लीट होता हुआ दिखा। तो क्या लगता है, मतलब क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग आई विल एब्सोल्युटली सेकंड योर ओपिनियन। यार खेलना तो चाहिए ही। देखिए गंभीर जब आए एज अ कोच, एक बढ़िया चीज उन्होंने की, श्रीलंकन जो टूर था उसके लिए दोनों को लेके गए। दैट सेट अ टोन कि यार आप ना पहले तो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर हल्के में मतलब टीम जिम्बाब्वे हो, श्रीलंका हो, कोई भी हो, परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग, यू हैव टू प्ले। इफ द कोच और द मैनेजमेंट आस्क्स यू हैव टू बी मैच रेडी, नंबर 1। अब ये जो ऑफ टाइम है, क्योंकि अब बिल्कुल सही कहा आपने, एक एक फॉर्मेट आप खेल नहीं रहे हो T20, तो यार आपके पास 2 ही फॉर्मेट, WTC आने वाला है एंड यू हैव अ वेरी लॉन्ग टेस्ट का टूर। 2 रीजन हो सकते हैं। एक हो सकता है दे आर लाइक इंजरी स्केयर है कि भाई कुछ चोट ना लग जाए, कुछ ना हो जाए। तो यार देखिए चोट तो आपको अगले बांग्लादेश के टूर में भी लग सकती है, आपको पहले टेस्ट में लग सकती है, आपको कभी भी लग सकती है, ट्रेनिंग में भी लग जाती है चोट। एग्जैक्टली। का तो कोई डर है नहीं। सबसे मेन बात जो हम कह रहे हैं कि यार यंगस्टर्स को जो चांसेस है उसको मिलने में, तो यार देखो 2 या 3 प्लेयर्स अगर आ भी जाए तो इतने 10 यंगस्टर्स के तो चांसेस खराब नहीं हो गए। एंड उन दोनों के, तीनों की टीम में रहने से जो बाकी के यंगस्टर्स है दे लर्न अ लॉट। जो आगे आने वाले 2-3 साल में मे बी उनका जो एक ग्रूमिंग पीरियड है, मेंटोरशिप है, सोचिए आप रोहित शर्मा के साथ में दुलीप ट्रॉफी में खेल रहे हैं, कितना कुछ सीख सकता है यार बंदा। मतलब यू नो इवन इफ दे डोंट प्ले, एटलीस्ट दे कैन बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड्स, दे कैन ट्रैवल विद द टीम। एंड ऐसा नहीं है कि इंडिया में एक्सेप्शन है, हम कुछ अलग ही मांग रहे हैं। देखिए और इंग्लैंड आप देख लीजिए, एलिस्टर कुक थे, तो उनका जो काउंटी क्रिकेट था लंबे टाइम तक खेलते रहे, तो उसमें भी रन मारते थे, वो भी तो इवन आफ्टर रिटायर। वो भी एक ही फॉर्मेट में करते थे फोकस, वो टेस्ट ही खेलते थे, राइट। वो ओडीआई में इतना फोकस नहीं करते थे, वो खेलते थे, काउंटी खेलते थे। इयान बेल ले लीजिए आप, या फिर आप जॉनसन ट्रॉट ले लीजिए, उनके बॉलर्स ले लीजिए, एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड ले लीजिए, वो सब
खेलते रहे। इवन आप ले लीजिए, आप अगर ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो जो भी बंदा ऐसा होता है जो थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म जाता है, वो हाँ। जाके अपना डोमेस्टिक खेलने लगता है। हम्म। तो राइट, ये लाइक इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, अगर दिस कैन बी इनकलकेटेड अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स, अपने बड़े प्लेयर्स लाइक बुमराह, आप जट्टू को ले लीजिए, आप साथ में और किसी प्लेयर को ले लीजिए, जाके डोमेस्टिक खेले, उनके लिए अच्छा ही है, खराब कभी नहीं है। देखिए जितने ज्यादा क्रिकेट का प्रैक्टिस है उतना ही ज्यादा मैच रेडी रहेंगे, उतना ही ज्यादा परफॉर्म करेंगे, एंड देन एटलीस्ट दे डोंट हैव टू सॉर्ट ऑफ, उनके पास में वो नहीं रहेगा कि यार किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि यार आप आउट हो गए, बांग्लादेश के अलावा इतना अच्छा खेले नहीं, तो आप बोल सकते हैं यार मैंने प्रैक्टिस, वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग, तो नो वन कैन रेज दैट फिंगर ऑन यू। करेक्ट। आई थिंक दैट इज माय ओपिनियन ऑन इट। एंड इंजरी भी देखो, मतलब इंजरी का भी जो मैं बोलता हूँ कि भाई इंजरी दो रीजंस की वजह से आती है। आइदर यू गेट अ फ्रीक इंजरी व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट एंड यू गेट अ इंजरी व्हाइल प्लेइंग, एंड द सेकंड रीजन जो कि ज्यादा कॉमन होता है दैट यू डोंट गिव योर बॉडी इनफ रेस्ट। आई एग्री, बट एट द सेम टाइम अगर आप उसको बॉडी को प्रैक्टिस में नहीं रखते ना, तो इंजरी प्रोन ज्यादा होते हैं प्लेयर्स, राइट? कि अगर तुम बॉडी को गर्म नहीं रखते हो, यू डोंट यू हैव टू प्ले क्रिकेट एंड prove your metal. I think जडेजा को भी similarly रेस्ट किया गया. Then you have बुमराह, बुमराह देखो, बुमराह is like the golden boy of Indian cricket. उसको जो करना है वो करे, है ना? उसको 14 मैच आईपीएल के खेलने हैं, वो ना करे, क्योंकि जो उन्होंने हमें वर्ल्ड कप में करके दिया है, मैं उनका एहसानमंद हूँ। उनको जो करना है, आई एम नॉट सेइंग विराट और रोहित ने कुछ नहीं किया, बट व्हाट इज इट डिफरेंट, लाइक बुमराह की जो बॉडी पे स्ट्रेंथ और वो लग रहा है स्ट्रेस इस टाइम पे, वो ज्यादा है. तो point being that I think in future, like we have discussed the rich history of the tournament, and it was started with the hope. Like when we ran you through the history, you could have seen that North Zone, South Zone, West Zone, East Zone. This was just bringing the best cricketers and bringing the best out of them. I really wish that in future, once the generation of silver spoons pass, I am sure. देखो, अगर विराट कोहली अभी ऐसे हैं, रोहित शर्मा भी ऐसे हैं, तो शुभमन गिल भी फ्यूचर में जाके थोड़े वैसे हो जाएंगे कि भाई मेरे को नहीं खेलना, मैं तो अपनी एंडोर्समेंट करता हूँ दो, एंड मैं खेलूंगा सीधा इंडिया के लिए. Hopefully, but I really hope that this changes, and this will only change when we give more importance to Test cricket, which is also why Duleep Trophy needs to remain, needs to be here, and it has been our pioneer, trophy, and it is here to stay, and I hope it stays in the longer format only. है ना? कल को वो 50 ओवर 60 ओवर विजय हजारे की तरह उसको बना दिया तो कोई फायदा नहीं है, right? And yeah, I think most things covered. Anything else? I think there are also many interesting facts about the Duleep Trophy, which I have been reading over the internet, but we don't reproduce internet stuff here. We try to bring you something new, right? And feel free to drop your comments. Any last thoughts, guys? Or we are okay to sort of कमेंट्स close? तो बस इसलिए बस इतना ही बोलूंगा कि यार देखिए, बहुत चीजें चल रही है टीवी पे, तो अभी दुलीप ट्रॉफी का भी नया टेस्ट आने वाला है। आई थिंक एनीवन हु इज मोर इंटरेस्टेड शुड गो एंड डेफिनेटली ट्राई एटलीस्ट, यार देखो डोमेस्टिक प्लेयर्स कौन है, कैसे हैं। आईपीएल में आप देखते ही हो, टेस्ट में परफॉर्मेंस देखो, एंड देन यू विल हैव अ बेटर विजिबिलिटी, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डोमेस्टिक टूर्नामेंट कैसा है, क्या है, बहुत मजा आएगा। अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल देखिए, फॉलो करिए। इस दुलीप ट्रॉफी में ना एक चीज मुझे बहुत, मतलब अगर मैं उस प्रॉपर उसकी बात करूं, मतलब इस पर्टिकुलर उसकी, तो एक तो मुझे टेलेंडर्स ने जो बैटिंग करी है वो बहुत अच्छा लगा। चाहे हम नवदीप सैनी की बात करें, ही स्कोर्ड अ 50। देन उसके बाद मुझे लगता है स्पिनर्स कुछ अच्छे निकल के आ रहे हैं, सौरभ कुमार, मानव सुतार। आई थिंक ये अच्छे बैकअप्स बनेंगे फॉर अश्विन, फॉर आई थिंक जडेजा के लिए तो अक्षर पटेल है ही, बट आई थिंक फॉर अश्विन वी नीड समबडी। तो आई थिंक ऐसे लिए टूर्नामेंट्स देखना बहुत अच्छा है, एंड वी शुड स्काउट प्लेयर्स, एंड आई थिंक इंडियन क्रिकेट के लिए में टैलेंट की कमी कभी भी नहीं थी, एंड बेंच स्ट्रेंथ बढ़ा ही रहा। बिल्कुल. बस इस पे ना मैं एक ऑनरेबल मेंशन करना चाहता हूँ. ऑनरेबल मेंशन इसका है, 2006 या 2007 की ना सीरीज में एक बड़ा नॉस्टैल्जिक नेम था हाईएस्ट विकेट टेकर, वीआरवी सिंह, है ना? मतलब मुझे वो बंदा बहुत प्यारा लगता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, बट वीआरवी सिंह का जैसे मैं नाम देखता हूँ, उसकी शक्ल देखता हूँ, वो क्यूट सा पंजाबी बॉलर जो ऐसे आता था, गोलू मोलू सा, और धोनी के छक्के खाता था, राइट? मुझे तो बस इतना इतना याद आता है. तो दुलीप ट्रॉफी हैज शोन सम इंटरेस्टिंग इंडियन फेसेस, एंड आई होप that continues in the time to come. And as I said, active Indian cricketers should participate in Indian domestic cricket, and that is the way forward if we need to win multiple WTCs going forward. Yes. And yeah, I think that's it about from this episode. Feel free, again, as we always say,
Our inboxes are open. Our comment section is open. Be it hate, be it like, be it fake, right? We are open for anything that you have to present us, right? It can be your feedback, it can be your opinion, and it can also be something not even related to cricket, and we are here to talk, right? And that is how the Boundary Banter functions, and we'll continue milking more content out of cricket, and we'll continue delivering absolutely unheard stories. This, which is the actual idea of this particular segment. So thank you all for tuning in, and hope to see you again. Sure. Thank you guys. Have a good time. Hi, good man.